صلی اللہ علیہ وسلم حل بقی من بر ابوی شیء ابرہما بہ بعد موتہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا والدین کی وفات کے بعد، ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد، کیا ان کے ساتھ کوئی نیکی ہے جو ان کے ساتھ نیکی کی جائے؟ بڑا بہترین سوال ہے۔ کیا کرنا چاہیے والدین کے وفات پانے کے بعد، ان کے سایہ کے سر سے اٹھ جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ یہی سوال صحابی رسول نے میرے کریم آقا سے کیا ہے۔ یہی سوال کریم آقا سے کیا گیا، یا رسول اللہ والدین کے وفات کے بعد، وصال کے بعد، ان کے سر سے سایہ اٹھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ کیا کوئی ایسا کام بھی ہے جو کریں اور یہ نیکی ان سے ملی ہوئی ہو، یہ نیکی ان سے ہے؟ کوئی ایسی نیکی ہے؟ اگر کریں تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، نعم، جی نیکی ہے ایسی، اگر دنیا میں کرو گے تو یہ ان کے ساتھ، والدین جو وفات پا چکے ہیں، جن کا سر سے سایہ اٹھ چکا ہے، گویا کہ ان کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں پہلی چیز الصلاۃ علیہما، آقا فرماتے ہیں والاستغفار لہما، پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے لیے دعا، ان کے لیے دعا۔ الصلاۃ، اگر سیدھا سیدھا معنی لیں تو صلاۃ نماز جنازہ بھی ہے، صلاۃ دعا بھی ہے۔ تو کریم آقا فرماتے ہیں ان کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، استغفار کی جائے، والاستغفار لہما، ان دونوں کے لیے جو دنیا میں نہیں رہے، ان کے لیے استغفار کی جائے، معافی مانگی جائے اللہ سے۔ الہی میرے تو بزرگوار تھے، میرے لیے تو ذی قدر تھے، میرے لیے تو وہ سر کا تاج تھے، معاف فرما دیجئے ان کو۔ اگر وقت نہ ملے، انسان ہے، آج تیزی کا دور ہے، بھئی وقت نہیں ہے بیٹھ کر قرآن پڑھوں اور ان کے لیے دعا کروں، اور ٹائم نہیں ہے بیٹھوں اور قرآن پاک کے 2-4 سپارے پڑھوں یا ذکر و اذکار کروں، ٹائم نہیں۔ بندے والدین، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، ماں باپ کے جانے کے بعد اگر حیات ہے نماز نہیں پڑھتا، ان کی وصال کے بعد، وفات کے بعد نماز شروع کر دے تو یہ ان کے لیے دعا کا ذریعہ بن جائے گا۔ صرف نماز شروع کر دے تو بندہ کہتا نہیں ہے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، دعا کرتا ہے بندہ، نماز شروع کر دے۔ ویسے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، آپ کے طریقہ مبارکہ کو دیکھیں، میرے کریم آقا نے اپنے والدین کے لیے اپنی ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر رو رو کر، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے زارو قطار روئے، زارو قطار رو رو کر میرے کریم آقا نے اپنی والدہ کے لیے دعا کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے رونے کو دیکھا اور ہم بھی رو پڑے، صحابہ کرام بھی رو پڑے۔ حدیث مبارک ہے والدین کے پہلی چیز میرے کریم آقا نے سبق دیا ہے کہ الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما، ان کے لیے دعا مانگی جائے، ان کے لیے استغفار طلب کی جائے۔ یہ دعا بہت بڑی عبادت ہے، اور دعا ایسی عبادت ہے بلکہ عبادت کی عقل ہے، مغز ہے یہ دعا۔ اور آگے پھر فرمایا میرے کریم آقا نے صرف یہی نہیں بس دعا کرو اور بس ایک باری چلی سو، ایک باری کول، ایک باری سال بعد پھر یاد کر ہی رکھو، نہیں، دعا تو ہمیشہ ہی بندہ کر سکتا ہے نا۔ اگر
5 वक्त का नमाजी बन गया, 5 वक्त का, तो 5 वक्त तो कम अज कम कितनी रकातें हैं, कितनी बार अत्तहियात पढ़ता है? तो जितनी बार अत्तहियात पढ़ी सुबह की नमाज में कम अज कम 2 बार तब तो उनके लिए, वालिदैन के लिए दुआ करता ही करता है ना। और टाइम नहीं ना मिलता, दुआ उनके लिए ऑटोमेटिकली। अल्लाह के हबीब का हुक्म भी यही है, उनके वफात के बाद सवाल भी यही है, या रसूलल्लाह उनकी वफात के बाद, वालिदैन की वफात के बाद क्या करें? क्या उनके साथ कोई नेकी भी है करें? तो करीम आका ने फरमाया हाँ नेकी है, उनके लिए इस्तिग़फ़ार की जाए, दुआ की जाए। ये उनके लिए इस्तिग़फ़ार दुआ करेंगे तो ये वालिदैन के साथ नेकी है। और फिर फरमाया इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वल इन्फाज़ु अहदिहिमा, वल इन्फाज़ु अहदिहिमा, उन्होंने जो वालिदैन ने, तेरी माई ने, तेरे बाप ने, तेरे वालिद ने जो वादा मुआहदा किए हैं, जो रिश्ते किए हैं, जो ताल्लुकात उस्तवार किए हैं, किसी के साथ वादा किया है तो उसे पूरा कर। वादा दुनिया में तू पूरा करेगा। वालिद तो चला गया, लेकिन अपने दोस्त के साथ, तेरे चाचा के साथ, तेरे मामू के साथ, या तेरे किसी भी रिश्तेदार के साथ तेरे वालिद का कोई वादा था, उसके साथ पूरा करेगा। ये वादा तो दुनिया में अपने चाचा, ताया, मामू के साथ, रिश्तेदार के साथ पूरा कर रहा है, लेकिन ये नेकी तेरे वालिद के साथ है, ये नेकी वालिद के साथ है। वालिद अल्लाह के भी फरमाते हैं उनका वालिदैन का हक है। दूसरी चीज बताई है वल इन्फाज़ अहद, उनका जो वादा किया है उसे पूरा निभाओ, उसे पूरा कर। फिर फरमाया अल्लाहु अकबर वसिलतुर रहम अल्लती ला तुसल, फरमाया सिला रहमी कर, जिनसे उनका रिश्ता जुड़ा हुआ था तू भी रिश्ता जोड़। ऐसे ना कह बस बाप तो मां तो चली गई, अब क्या रिश्ता, क्या रिश्ता रहा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं रिश्ता ये सिलतुर रहम, रहम का लफ्ज रहमान से मुश्तक है, मुअल्लकुम बिल अर्श, ये रहमान का लफ्ज अर्श से मुअल्लक है। मेरे करीम आका फरमाते हैं जिसने इसको तोड़ा, इस रहम को, रिश्ता को तोड़ा, आपस में ताल्लुक को तोड़ा, उसने मेरे रहमान के लफ्ज रहमान को तोड़ा। जिसने इसको जोड़ा, रिश्तेदारी को जोड़ा, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि उसने रब के रहमान, ये जो नाम है रब का रहमान, रहमतों वाला, उसने गोया कि अल्लाह की रहमतों के साथ अपने आप को जोड़ा है। तीसरी चीज मेरे करीम आका बताई, चौथी बताता हूं और बात खत्म करते हैं जो हुजूर खिताब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के भी फरमाते हैं ला तुसल, जिसके साथ रिश्तेदारी कर जाते हैं वालिदैन, फिर जब उनका दुनिया में नामो निशान न रहा, वफात पा गए, तो क्या उनकी रिश्तेदारी थी, हमारी क्या रिश्तेदारी? अब मां चली गई, रिश्तेदारी भी खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे करीम आका जहराना मकाम पर हुजूर पाक गोश्त तकसीम फरमा रहे हैं। हदीस पाक है, ये भी मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक है। मेरे करीम आका जहराना मकाम पर गोश्त तकसीम फरमा रहे हैं, तो लोगों का थोड़ा रश है, तो हुजूर करीम गोश्त तकसीम करते करते एक बूढ़ी औरत के पास पहुंचे, तो उन्हें अपने करीब किया, और करीब भी ऐसा अपनी चादर मुबारक, अपनी कमली मुबारक उनके लिए बिछा दी, उनको बैठा दिया। तो सहाबा किराम ने पूछा, हजरत अबू तुफैल फरमाते, मैंने पूछा ये कौन है? ये बूढ़ी ऐसी औरत जिनके लिए हुजूर ने अपनी कमली बिछा दी। तो मेरे करीम आका गुलाम अर्ज करते हैं ये हुजूर की रज़ाई माँ हजरत अम्मा हलीमा है, जिन्होंने हुजूर पाक को दूध पिलाया है, उनके लिए मेरे करीम आका ने अपनी कमली बिछा दी। माँ है, हम तो कहते हैं ना माँ गई और रिश्ता खत्म। अल्लाह के भी फरमाते ला तुसल, ऐसा ना कर, रिश्ता तोड़ नहीं, जोड़ उनके साथ। चौथी चीज मेरे करीम आका फरमाते हैं व इकराम सदीक़िहिमा, इज्जत कर अपने वालिदैन के दोस्तों की, वालिदैन के दोस्तों की इज्जत कर। एक साहबी रसूल है, गलती हो गई, गुनाह हो गया, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे से गुनाह हो गया, बड़ा गुनाह हुआ। हुजूर के पास आए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गलती हुई, क्या करूं? हल्लक मिन उम्मे, हुजूर पाक ने फरमाया तेरी वालिदा है। अर्ज की या रसूल अल्लाह नहीं है। फिर हुजूर पाक ने फरमाया अच्छा वालिदा नहीं है। अच्छा, एक तरफ बात समझ नहीं आती, एक तरफ गुनाह है, दूसरी तरफ हुजूर फरमाते हैं क्या मां जिंदा है? गुनाह का
गुनाह हो जाए तो अल्लाह फरमाते तूबू इलल्लाह तौबा, तौबा करनी है तो अल्लाह के दरबार, अल्लाह से रुजू कर। गुनाह हुआ है, हुजूर पाक फरमाते माँ का पूछ रहे हैं, माँ है जी? माँ नहीं है। तो हुजूर पाक ने फरमाया अगर माँ नहीं है खाला है, मासी है जी या रसूलुल्लाह माँ है, खाला है, मासी है। तो मेरे करीम आका फरमाते हैं जा उसके साथ हुस्न सलूक कर, माँ तेरी, माँ की बहन खाला तेरी राजी हो जाएगी। ये रिश्ते जोड़ने की बात है, तोड़ने की बात नहीं है। तो मेरे करीम आका फरमाते हैं जा तू खाला के साथ, अपनी मासी के साथ हुस्न सलूक करेगा। ये हुस्न सलूक गोया कि तेरी माँ के साथ है, जो तेरी माँ के साथ हुस्न सलूक, तेरा आपस में हुस्न सलूक हो रहा है, अल्लाह इसके बदले तेरे गुनाह माफ कर दे। गुनाह हुआ है तो मां का पल्ला फिर भी नहीं छूटता। अल्लाह अकबर। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जाते जाते ना सवारी से उतरे एक शख्स को देखा, देहाती को, शख्स को देखा और अपनी पगड़ी उतारी उनके सर पर रख दिया, अपने सर पर रखा। तो गुलाम ने पूछा बाद में ये कौन थे जिन साहिब को आपने अपनी पगड़ी उतार कर पहना दी? फरमाने लगे ये मेरे वालिद के दोस्त हैं। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं व इकराम सिद्दीक़हिमा, अपने वालिदैन की दोस्तों का इज्जत कीजिए। तो मैंने हदीस को सामने रखते हुए मैंने अपनी पगड़ी उतार कर अपने वालिद को के दोस्त को पहना दी। ये 4 नेकियां हैं मेरे करीम आका ने फरमाई कि ये 4 नेकियां करोगे तो गोया कि अपने वालिदैन के साथ ये नेकियां की हैं। अल्लाह हमें वालिदैन के वफात के बाद हुस्न सलूक से और जो अल्लाह के हबीब ने अहकामात बताए हैं, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।